غیر ملکی تعاون سے بڑے شہر میں بڑے منصوبے کلک 62 ارب کا منصوبہ 24 ارب جاری 14 ارب خرچ ہو چکے منصوبے میں سندھ حکومت کا حصہ 27 ارب روپے KMC کے 7 ٹاؤنز کے 50 منصوبوں پر کام جاری وزیر اعلیٰ سندھ کا سولر منصوبے پر بھی کام تیز کرنے کا حکم شمسی توانائی کے منصوبے پر 27 ارب لاگت آئے گی سولر سسٹم خریدے جائیں گے سولر پارک اور 600 سولر ٹیکنیشنز کی تربیت بھی منصوبے کا حصہ مراد علی شاہ کا غیر ملکی تعاون سے چلنے والے منصوبوں کی رفتار پر اظہار عدم اطمینان وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ترقیاتی کام پر تیز رفتاری کی ہدایت غیر ملکی تعاون سے بڑے شہر میں بڑے منصوبے کلک 62 ارب کا منصوبہ 24 ارب خرچ جاری کی جا چکے جبکہ 14 ارب خرچ ہو چکے ہیں منصوبے میں سندھ حکومت کا بھی حصہ 27 ارب روپے KMC کے 7 ٹاؤنز کے 50 منصوبوں پر کام جاری وزیر اعلیٰ سندھ کا سولر منصوبے پر بھی کام تیز کرنے کا حکم عاجز جمالی کی رپورٹ سندھ میں دوسرے ممالک کی شراکت سے چلنے والے منصوبوں پر کام جاری وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹس کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا صوبائی وزراء کو وقت پر کام مکمل کرنے کا حکم دے دیا پراپرٹی ٹیکس کی وصولی پر حکم امتناعی ختم کروانے کی ہدایت کر دی وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا مراد علی شاہ کو صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ سعید غنی علی احسن زرداری اور محمد بخش بہر نے بریفنگ دی سولر انرجی پروجیکٹ سڑکوں کی تعمیر کلک پروگرام KMC پراپرٹی ٹیکس اور دیگر منصوبے شامل ہیں سعید غنی نے بتایا کہ KMC کے 7 منصوبوں پر کام جاری ہے ٹاؤنز کی 18 اسکیموں پر کام چل رہا ہے اور 32 نئی اسکیمیں شروع ہو گئی ہیں کلک پروگرام میں 62 ارب 31 کروڑ 70 لاکھ روپے کا منصوبہ ہے 24 ارب 29 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری ہو چکے ہیں اجلاس کو بتایا گیا کہ سویپ کے تحت 4 گاربیج سینٹرز بنائے گئے ہیں لینڈ فل سائٹ کا ٹھیکہ چائنیز کمپنی کو دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 2025 تک روڈوں کے تمام منصوبوں کو مکمل کیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ تمام منصوبوں کو وقت پر مکمل کیا جائے عاجز جمالی سٹی 21 آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سندھ سیکریٹریٹ میں جعلساز گروہ سرگرم ہے پیسے دو سرکاری نوکری لو محکمہ بلدیات میں جعلساز افسر کی بھرتی کا انکشاف سامنے آ گیا لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے گروہ نے رانی پور کے رہائشی عبدالقیوم سہتو کو 16 گریڈ کا ایڈمنسٹریٹر افسر بنوا دیا 20 لاکھ روپے کے عوض جعلی آرڈر پکڑا دیا جعلسازوں کو اسپیشل برانچ کے اہلکاروں نے دھر لیا آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ ٹاؤن انتظامیہ نے عبدالقدیر جعلی آرڈر پر سیکشن آفیسر ایڈمن محکمہ بلدیات عبدالغفور پتافی کے دستخط ظاہر کیے گئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات سید خالد حیدر شاہ کی منظوری بھی ظاہر کی گئی سر میں نے پیسے لیے تھے ڈیوٹی کے لیے لوکل گورنمنٹ میں 20 لاکھ میں 16 لاکھ میں نے کیش کی 4 لاکھ کا چیک دیا ہے وہ ابھی اس نے آرڈر دیا تھا میں نے یہاں سے ویریفائی کروایا تو جعلی نکلا لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے جعلساز گروہ میں الہی بخش میرانی اور مسعود احمد بروئی شامل تھے جعلسازوں کو محکمہ بلدیات کے اندر اسپیشل برانچ کے اہلکاروں نے دھر لیا جعلساز بروکرز نے ملبہ ایک اور جعلساز پر ڈال دیا کہا آرڈر ایک اور شخص نے دیا اور پیسے اسی کو دیے سر مسئلہ یہ جو نوکری دلاتا تھا نا سر وہ ریٹائر ڈاکٹر ہے اس کو پیسے 11 لاکھ دیے اس نے آج یہ آرڈر دیا اس نے مجھے بلایا تم ان کے ساتھ جاؤ یہ ویریفائی کرواؤ ہم لاڑکانہ سے ہیں ان کے ساتھ ویریفائی کروانے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے پیسے اس نے لیے معاملہ بیچ میں آدمی جو ہے بیچ میں آدمی اس نے کام یاد کروا دیا تو اس سے بائک ہے ان سے پیسے آپ نے لیے اس کو دے دیں اس کو دیے تھے میں نے سنکل کو دی وہ اس کے پہچان والا ہے کتنے پیسے لیے تھے 20 لاکھ جعلسازوں نے یقین دلایا کہ وہ رقم واپس کرنے کو تیار ہیں مشروط شرط پر اسپیشل برانچ کے اہلکاروں نے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے چھوڑ دیا آزاد نوڑیو سٹی 21 سیف سٹی کیمرے مجرم کو بھی پہچان لیں گے جدید کیمروں سے لیس گاڑیوں کا کراچی میں گشت سیف سٹی منصوبے سے ہر چیز کی مانیٹرنگ ہوگی جعلی نمبر پلیٹس والے بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے انوشا جعفری کی رپورٹ مجرم کتنا بھی تیز ہو اب نہیں بچ پائے گا کراچی ہوگا اب محفوظ سے محفوظ تر جدید کیمروں سے لیس سیف سٹی پروجیکٹ کی گاڑیاں سڑکوں پر بابر سیف سٹی کالنگ کنٹرول اینی تھنگ ہیئر می
गाड़ियों पर लगे कैमरे करेंगे फेस रीड, हर चीज की होगी मॉनिटरिंग, जाली नंबर प्लेट्स वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। इसमें ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये 6 कैमरे हैं जो कि इसके अंदर कंसील फिट हैं, और जो ऊपर एक कैमरा है जो कि आपको विजिबल नज़र आ रहा है ये रोटेट होता है, ये 360 डिग्री कैमरा है। जो भी सस्पिशियस प्लेट होगी गाड़ी की या सस्पिशियस चेहरा होगा उसको हम अपने कैप्चर कर लेंगे और अपने CRO रिकॉर्ड से चेक करके अगर हमें महसूस होगा कि अननेसेसरी कोई मूवमेंट है तो उसको फिर हम रोकेंगे भी और कंसर्न थाने को बता के फिर उसको हम बाकायदा जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। इंचार्ज ऑपरेशन सेफ सिटी ने बताया कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने के बाद अगर कोई डकैती की इतला भी मिली तो गाड़ियां वहां भी फौरी रवाना की जाएंगी। सेफ सिटी की गाड़ियां 24 घंटे लाइव फीड देंगी। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का मजीद गाड़ियां भी सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया। इंचार्ज ऑपरेशन सेफ सिटी शहबाज मोहम्मद के मुताबिक एक गाड़ी पर 7 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरामैन इमरान के साथ अनुषा जाफरी, 24 न्यूज़ कराची। अवाम होशियार, हुकूमत फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने को तैयार। पेट्रोलियम और डीजल मसनूआत महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 87 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। अशरफ खान की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां, पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़, पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। राय का कहना है कि मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 248 रुपए 38 पैसे से बढ़कर 251 रुपए 38 पैसे पर पहुंच जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 87 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 255 रुपए 14 पैसे से बढ़कर 258 रुपए 1 पैसे पर पहुंच जाएगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आवाम के लिए जो है ना ये तो महंगाई बढ़ती है, इनके इससे गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ना। वजह ये कि देखो गवर्नमेंट का फ्री है, गवर्नमेंट का फ्यूल फ्री है, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, पता नहीं कितने हज़ार जो है ना यूनिट उनको फ्री दी जा रहे हैं, तो उनका नुकसान नहीं है। ये नुकसान सिर्फ आम शहरियों का, हमारा जॉब करने वाला है, जितना जॉब करने वाला तबका उनका है। अल्लाह इनको हिदायत दे भाई, यही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। 4 की बात कर रहे हैं ना, 400 रुपये बाकी भी बढ़ा देंगे तब भी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आवाम 300 रुपये पे नहीं निकली वो 250 से 254 पे क्या करेगी, कुछ भी नहीं। जराए का कहना है कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 11 पैसे और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 पैसे कम करने की तजवीज़ भी दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला 30 नवंबर को होगा। माहिरीन का कहना है कि लंदन बर्नेट ऑयल माह नवंबर में अब तक 1.34% कमी के बाद $72 फी बैरल से नीचे ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमत के हिसाब से हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बरकरार भी रख सकती है। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की इंतजामिया का अहसन इक़दाम। गुंजानाबाद इलाके के अवाम को दिल के अहम टेस्ट इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी जारी। मरीजों का इजहार मुसरत, कहते हैं कि अब उन्हें इब्तदाई टेस्टों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची का अहम इकदाम, दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के इब्तिदाई टेस्ट शुरू। अस्पताल में ECG, इको समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलत मिलने पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। मेरे यहाँ पे मेरा अच्छा चेकअप हुआ है, बेटर फील कर रही हूँ पहले से। यहाँ पर दिल का अच्छा इलाज हो रहा है। मैं अपनी वालिदा को लेकर आई थी तो काफ़ी अच्छी सहूलतें हैं यहाँ पर माशाल्लाह। शोबे अमराज कल्ब के डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि गुंजान आबाद इलाके में दिल के मरीजों को इब्तिदाई सहूलतें मिलना किसी नेमत से कम नहीं। मरीजों को मजीद बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ये हमने शुरू की है इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कार्डिक के दिल के अमराज जो है ना वो ऑलमोस्ट वबाई अमराज की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और अब तो छोटे छोटे सेटेलाइट सेंटर्स भी खुले हैं। हमारा ये सेटअप बेसिकली काफ़ी एडवांस है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो सेटअप किया है इसमें हमारे पास 2 बेसिकली सेक्शंस हैं। एक सेक्शन जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का सेक्शन और दूसरा डिपार्टमेंट जो है ना वो हमारा ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। डॉक्टरों का कहना था कि दिल के अमराज से बचने के लिए वर्जिश को मामूल बनाएं, जबकि घरेलू अशिया इस्तेमाल करें, ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। UAE गवर्नर हाउस IT कोर्सेज के तलबा को मुलाजमतें फराहम करेगा। गवर्नर कामरान चिसोरी ने नौजवानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। गवर्नर सिंध की जानिब से UAE कौमी दिन की तकरीबात जारी, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट।
गवर्नर हाउस IT कोर्स के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, मुत्तहदा अरब अमीरात में मुलाजमत के मौके मिलेंगे। UAE की कौमी दिन की मुनासबत से कराची प्रेस क्लब चौक पर जश्न, शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कामरान टिसोरी ने नवीद दी कि UAE हमारे IT कोर्स के तलबा को मुलाजमतें फराहम करेगा। UAE सिंध में महफूज सरमायाकारी का भी ख्वाह है। अभी जब मैं गाड़ी में यहाँ आ रहा था तो मुझे एम्बेसडर साहब पूछ रहे थे कि आपका IT का जो प्रोग्राम है वो कैसा जा रहा है, और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जब ये डिप्लोमा हासिल कर लेंगे तो इनकी जॉब्स के लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो यहाँ कौंसलेट है उससे भी आप राब्ते में रहें, हमें बहुत सारे IT जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज़रूरत UAE में है। तो मैं समझता हूँ कि ये UAE पाकिस्तान दोस्ती और मोहब्बत का इजहार है। इस मौके पर अमराती सफीर ने कहा कि हमारे ताल्लुकात दोस्ताना हैं और गवर्नर सिंध इसमें मजीद ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। brotherly relationship, and we are here as a bridge to build on this relationship and make sure this relationship always moving to the high levels. तकरीब में कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती समेत सिफारत खाना के दीगर अरकान भी शरीक थे। इस मौके पर कौंसल जनरल ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। कैमरामैन हसन अजीज के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। 21 दिन रानाइयाँ बिखेरने के बाद अवामी थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर सकाफत सिंध ज़ुल्फ़िकार शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फनकारों और हिदायतकारों को सर्टिफिकेट से नवाजा। थिएटर मेले में कुल 28 ड्रामे, आखिरी रोज़ ड्रामा बंटवारा पेश किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड साज दिन, 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया गया। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा 1,83,000 पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं कि शरह सूद में कमी 7 और IMF मुआहिदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन, माशी अदादोशुमार में बेहतरी और शरह सूद में कमी ने मार्केट को पर लगा दिए। 1 लाख पॉइंट का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स 1813 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख में पहली बार 1,82,000 की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ। MD स्टॉक मार्केट फारूक सब्जवारी ने कहा है कि बेहतर होते माशी अदादोशुमार पर 17 माह में 100 इंडेक्स में 150% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह से सिर्फ 17 माह में 1 लाख की सतह पर पहुंच गया। ये पहला मौका नहीं है, बहुत मौके और आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। हमें जो सेलिब्रेट और भी करना है वो इन्वेस्टर नंबर को करना है। ठीक है जी, आपने कहा 3.5 लाख हैं, क्या काम आप लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको हम पूरा प्लान बताएंगे कि ये 3.5 लाख से हम कैसे बढ़ाने वाले हैं। लिस्टेड कंपनीज कैसे हो, और हम लिस्टेड कंपनीज को एनकरेज करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें भी पता है। स्टॉक माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और सरमायाकारों को बेहतर बना रहा है। तवक्को से ज्यादा अफराते ज़र और शरह सूद में गिरावट से स्टॉक मार्केट में तेजी हुई। देखें, चीज़ें जो है उसमें स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ रिस्की बिजनेस। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। किसी भी आइटम में इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी बुक ज़रूर देखें, उसको देखें कि वो क्या आइटम की कौन सी पी पे ट्रेड कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो मार्केट है लाख की 2-4 लाख 2-4 हज़ार, अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। हमारी इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत खुशी की बात है। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। अगर ये सियासी बेयकीनी ना होती तो ये तो हम पहले ही अबूर कर चुके होते। स्टॉक ब्रोकर्स की जानिब से 1 लाख की हद पहुंचने पर केक भी काटा गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अयाज राना, कराची। KMC और कलदम DMCs के 9,500 रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशनर्स के 13 अरब रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस का एहतजाज मुसलसल दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुख्तलिफ टाउन्स में मुलाजमीन की जानिब से अलामती कलम छोड़ हड़ताल की गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। KMC और कालदम TMCs के 9,500 पेंशनर्स वाजिबात से महरूम। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस इनको हक दिलाने के लिए सरापा एहतजाज। लियारी और सदर टाउन में अलामती कलम छोड़ हड़ताल की गई।
म्यूनसिपल वर्कर्स की यूनियन ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज जारी रखने की धमकी भी दे दी। हम मुसलसल 14 महीने से एहतजाज में हैं और हमने हर सूरत में इन लोगों को लिखा पढ़ा, हर किस्म की कार्रवाई की है, लेकिन अब अगर वो ये समझती है KMC की इंतज़ामिया कि ये काम ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा तो एहतजाज जारी रहेगा और अब उसके आखिरी एहतजाज भूख हड़ताल के बाद जो है फिर हम अदालत से भी रुजू करेंगे। आज जो है हमने सुबह जो है सदर टाउन के अंदर जो है वो कलम छोड़ हड़ताल कराई। भरपूर अंदाज में ये जो है हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं ने 2 दिसंबर से गैर मुआयना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का भी अंदिया दे दिया। अब मसला ये है कि मुर्तज़ा वहाब तो इतना वो कर रहे हैं, नहीं मान रहा है, तो हम उस पर भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। हम KMC हेड ऑफिस दोबारा बंद करने पे जाएंगे। हम तमाम 25 टाउनों को मिला के एक भरपूर लाया अमल तय करेंगे। KMC और कालादम DMCs के 9,500 रिटायर्ड मुलाजमीन साल 2017 से अपने वाजिबात के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मेडिकल और रेवेन्यू के शोबे को आउटसोर्स करना नामंजूर। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA यूनियन का वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन हेड ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा। जनरल सेक्रेटरी वसीम यूसुफ कहते हैं कि किसी शोबे को आउटसोर्स नहीं होने देंगे। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। मेडिकल और रेवेन्यू के शोबे को आउटसोर्स करने के खिलाफ मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट दीवार बन गए। CBA यूनियन के मुलाजमिन ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में खवातीन ने भी नारेबाजी की। मुत्तहिदा यूनियन CB के चेयरमैन इरशाद खान कहते हैं आउटसोर्स नहीं होने देंगे। एहतजाजी मुजाहरा जो है वो इस हवाले से रखा गया है कि मेडिकल और रेवेन्यू को जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि किसी शोबे को आउटसोर्स करने नहीं दिया जाएगा। मुजाहिरीन कहते हैं रेवेन्यू को आउटसोर्स करके वाटर सबसे अहम वजह जो हमारी है, जो आज हम यहाँ आए हैं और जमा हुए हैं, उसकी सबसे अहम वजह जो है हमारे इदारे को आउट ऑफ सोर्स किया जा रहा है। उस पे हम सबको बहुत एतराज़ है और जाहिर है हम सब इसके खिलाफ हैं। हम आउट स्टेशन के जितने भी बंदे हैं, न हमें मेडिकल की मुहैया दी जाती है, न कोई मसला। जब भी वाटर बोर्ड का मसला आता है हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब साथ हैं। हम कयूम भाई के साथ हैं, मुत्तहिदा कम्युनिटी के साथ हैं। जो ये शोबा आउटसोर्स किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, क्योंकि जो है हम नहीं चाहते हैं कि ये शोबा जो है आउटसोर्स किया जाए। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन का कहना है कि अगर MD और CEO ने आउटसोर्स का मामला ना रोका तो हम एहतजाज का दायरा वसी करते हुए सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शाहिद, T21।